ایک غیر مسلم ہندو برہمن وہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر کی عظمت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے. میں ایک چیپٹر ان کا پڑھتا ہوں, ان کی کوالٹیز کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پرتھوی کا ہیرو یعنی ابتری انسان لاجواب ہستی کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. پتھر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان غیر مسلموں نے ہمارے پیغمبر کی شان میں جو جو کلمات کہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو اسی کی برادری کا اس سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اس نے میرے پیغمبر کی جو تعریف کی ہے اس تاریخی جملوں کو دیوار میں لکھ دے, ان تاریخی جملوں کو واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو شیئر کرے, ان تاریخی جملوں کو دنیا والوں کو پہنچا دے کہ تم بھی تو غیر مسلم ہو, تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اور یہ بھی تو پڑھا لکھا غیر مسلم ہے جنہوں نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں زبردست اپنے دل کے جذبات کو کھول کے رکھ دیا ہے. وہ کہا, وہ آخر میں کہتا all these magnificent role in these departments of human activities he is like a hero. مسلمان نہیں, مولانا نہیں, پیر صاحب نہیں, ایک ہندو برہمن. وہ کہتا انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو مصطفیٰ کا یوگدان رہا ہے, جو ان کا مارگدرشن رہا ہے, جو ان کے احسانات رہے ہیں, جو انہوں نے جیون کی جیون شیلی کی ہے, کہتے ہیں اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان محمد عربی علیہ السلام. اسی کو اعلیٰ حضرت بریلوی سے کہا کوئی بڑا نہیں ہے, نہ پروفیسر بڑا, نہ تھنکر بڑا, نہ آفیسر بڑا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پیغمبر اعظم کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کس طرح ہمارے پیغمبر سروسریشٹھ ہیں, کیسے ہمارے پیغمبر مہان تم پروس کی صورت میں اس دنیا کے رحمت بن کے جلوگر ہوئے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے کیا کہا اس نے, جان ڈیوڈ پورٹ نے, اس نے کہا کہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں, اور the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے, گفتگو ہارڈ تو نہیں ہو رہی آپ کے لیے, بالکل ہارڈ میں سمپل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں, بہت سمپل گفتگو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. شدید حاجت ہو کہ پیشاب کپڑے میں ہو جائے گا, اس حالت میں جانے کی پرمیشن ہے, ورنہ عام حالت میں آپ الجھن کے شکار نہ ہوں بلکہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں, ایک معلوماتی خطاب آپ تک پہنچ رہا ہے. اب کیسے جان ڈیوڈ پورٹ نے کہا عربی مدارس کے جو علماء ہیں, the Spanish Saracen عربی مدارس کے علماء یورپ کی سائنس کے بعد کہے جانے کے مستحق ہیں. کیا کہا, جو سائنس جوان ہوئی ہے اس کو جوان بنانے میں عربی مدارس کے علماء کا ہاتھ رہا, ان کا ہاتھ. اب کیسے ہاتھ رہا, بس ایک پوائنٹ آپ کو میں پہلے بتاتا ہوں. امریکہ نام کا کوئی ملک آج سے 1000 سال پہلے نہیں تھا. کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا, جیسے ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا, اسی طرح امریکہ کا پتہ کولمبس نے لگایا. کب پتہ لگایا, 1495 میں, یعنی آج سے 1000 سال پہلے امریکہ کوئی ملک ہے اس کا پتہ چلا. لیکن آج وہ ملک دنیا کا سب سے شکتیشالی, دنیا کا سب سے بڑا سائنسی ملک ہے, دنیا پہ راج کرنے والا. ان سے پوچھا کہ کس نے آپ کو طاقتور بنایا, کس نے آپ کو دنیا پہ راج کرنے کا ہنر اور آرٹ سکھایا. امریکہ کا جواب ہے نالج از پاور, نالج از لائٹ. علم طاقت کا نام, علم روشنی کا نام, علم نے مجھے طاقتور بنایا. آج ساری دنیا میرے سے ہتھیار لے رہی ہے, میرے سے سائنس کے فارمولے لے رہی ہے. علم علم علم, نالج شکشا شکتی کا نام ہے, نالج پاور کا نام ہے, علم طاقت کا نام ہے. چائنا آج سے 1000 سال پہلے بدھسٹوں کا گھسا پیٹا ملک آج دنیا کی منڈیوں پہ اپنا مال پھیلا دیا ہے. کس نے آپ کو دنیا کے مارکیٹ میں سب سے زیادہ مہنگا, سب سے زیادہ طاقتور ملک بنایا ہے؟ جواب ہے چائنیز کا. نالج از پاور, نالج از رائٹ. علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے. آج ہندوستان انجینئروں کا ملک کہلاتا ہے. گلف کنٹریز کے 25 سے زائد ممالک میں ہندوستان کے انجینئر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. آج سے 300 سال پہلے نہ JNU کا پتہ تھا, نہ
IAMU का पता था, न किसी यूनिवर्सिटी का पता था। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, चाहे मैसूर यूनिवर्सिटी, चाहे रोहिलखंड, चाहे बम्बई यूनिवर्सिटी, सबकी तारीख 300 साल के भीतर की है। सबकी तारीख एक यूनिवर्सिटी नालंदा की है, जो यूनिवर्सिटी का पता मिलता है 1000 साल पहले, लेकिन वो बुद्धिस्टों का एक धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र था, जिसको मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कहने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। पिता मुल्क आज ताकतवर है, किसने बनाया? वही सारे लोग पढ़ेंगे। सब शिक्षा अभियान है, सब घर में शिक्षा पहुंचे। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। चाइना बोलता है इल्म ताकत का नाम है, अमेरिका कहता है नॉलेज पावर का नाम है, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है। और ताज्जुब की बात यह है, ये शिक्षा को शक्ति सबसे पहले किसने कहा? इल्म को ताकत सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को लाइट सबसे पहले किसने कहा है? पिछले 1400 साल पहले जाए, जब न अमेरिका में का नाम था, न चाइना का वजूद, चाइना में किसी एक स्कूल का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। वह गुरुकुल के जमाने में एक दरख्त के साए में एक गुरु बैठता था और 2-4 शिष्य उसके सामने बैठते थे, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज दुनिया में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज है, हजारों कॉलेजेस है, लाखों स्कूल से मौजूद है। ये शिक्षा का केंद्र है। किसने सबसे पहले इल्म को नूर कहा, इल्म को ताकत कहा, शिक्षा को शक्ति कहा? सबसे पहले इस धरती पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए तो मैं कहता हूँ क़यामत तक जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, मुंह उसका होगा। ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, इल्म को रोशनी कहेंगे, मुंह उसका होगा, मगर ये फार्मूला मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। इस्लाम का है, जिसने बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। यह सबसे पहली दरसगाह मदरसा है जो असहाबे सुफ़ा की सूरत में मस्जिद नबी में एक चबूतरा था। उसी चबूतरे से आवाज आई, इल्म हासिल करो, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म ताकतवर बना देगा, इल्म सम्मान दिलाएगा, इल्म बेहतरीन तेरा साथी है, इल्म हथियार है, इल्म सलाहुल मोमिन है, इल्म खलीलुल मोमिन है, इल्म मोमिन की बेहतरीन कंपनी है, इल्म मोमिन का बेहतरीन साथी। ताज्जुब की बात है कि नाले पे जिस पैगंबर ने इतना जोर दिया है, उसके कलमा पढ़ने वालों में जहालत का रेशो ये रहे कि सिर्फ 10% लोग पढ़ रहे हो, 90% हायर एजुकेशन से महरूम है, सिर्फ 3% लोग मदरसे में पढ़ रहे हो, बाकी इसका 40% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, बाकी जो परसेंटेज है वो सब गुल्ली डंडा लेके सड़कों पे खेल रहे हो। सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो इल्म का एवरेज है वो मुस्लिम कौम में कम है, जिसके पैगंबर ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी की संज्ञा दी। उस पैगंबर के हर घर में हर गुलाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन पैगंबर की कलमा पढ़ने वाली हर औरतों को दीनी तालीम से आरास्ता होना चाहिए। इल्म ही है जो सीने को पुख्ता करता है, इल्म ही है जो नर्वसनेस को दूर करता है, इल्म ही है जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ज़बान अता करता है, इल्म ही है जो हौसला शिकनी के माहौल में हौसला जवान रखने का पैगाम देता है, इल्म ही है जो अत्याचार के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, जो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ज़बान देता है। आज हम नर्वस हो गए, आज हम कमजोर हो गए क्योंकि हम इल्म से महरूम है। आज फिर ये मदरसा आवाज देता है कि घर घर मुसलमानों की लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए। हर मुसलमान बच्चा जमीन खरीदना बंद कर दे, प्लॉट खरीदना बंद कर दे, वो साथ मकान बनाना बंद कर दे। पहले अपने बच्चों को पढ़ाए, मजहब की भी तालीम दे और दुनियावी भी तालीम दे, ताकि मदरसा भी आबाद रहे और दुनियावी दरसगाहें भी आबाद रहे, ताकि मदरसा में पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो दुनिया में दूसरों के सामने हाथ फैला के अफीक नहीं मांगे, बल्कि यहाँ भी खुशहाल रहे और दीन सीखे, ताकि मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत चले जाए।
यही पैगाम कुरान देता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता कर, मरने के बाद भी भलाई अता कर। ये दुआ कौन सिखलाता है? अल्लाह सिखा रहा है अपने बंदों को कि मेरे बंदे मुझसे यूं दुआ करना, मुझे दुनिया भी दे दिया जाए, यहाँ भी भलाई दिया जाए, मरने के बाद भी अच्छाई भलाई जन्नत की सूरत में मुझको दिया जाए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा लगनशीलता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे 14 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 15 से लेकर 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जब दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे की मेहनत है, तो जिनको दुनिया में भी कामयाब हो रहा है और मरने के बाद जन्नत जाना, ऐसा नहीं कि जन्नत कोई काल्पनिक बात है, तसव्वुराती बात है, फातिहा दिला के जन्नत मिल जाए, लोबान जला के जन्नत मिल जाए, चादर चढ़ा के जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े और हम लोबान में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम अगरबत्ती में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब बताशे में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम शक्करपारा में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब मजार पे हाजिरी में जन्नत ढूंढ रहे हैं। जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है कि गुलाब का फूल लेके जाए मजार पे चढ़ाएं, वहां से 2 एकड़ जमीन की मुराद भी मांग ले और मरने के बाद जन्नत भी चले जाए, लोबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और साहब जन्नत भी मिल जाए और दुनिया में 1 करोड़ का बंगला भी मिल जाए। ये जो आज मेरे मोहल्ला में करोड़ों की हाजिरी हो रही है, मेरे ख्याल से वो सारी हाजिरी, अक्सर लोगों की हाजिरी वो माल और औलाद और साहब दुकान मकान के लिए हो रही है। तो अब जाते हैं, अजमेर तो गया हूँ, मैं बरेली तो गया हूँ, यानी बरेली गए मकान दुकान बेटा के लिए, तो फिर जन्नत भी मिल जाए मुफ्त में और दुनिया में सब कुछ मिल जाए मुफ्त में नहीं होता है। आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाओ कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा वहां से भगा देंगे कब्र से उठ करके कि आम का पेड़ लगने के बाद यहाँ से सेब की दुआ मांगने आया है, तो क्या दुनिया का निजाम को तू बदलना चाहता है? नहीं होगा ऐसा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। आप गेहूं के खेत से गेहूं निकलेगा, आम के पेड़ से आम फलेगा। तो ऐसा नहीं कि अजमेर गए वहां मांगा दुनिया भी मिल गई, बेटा डीएम मर गया, नहीं होगा ऐसा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। होगा कब? ये होगा जब हमारा बच्चा मैट्रिक में 95% नंबर लाए, हमारा बच्चा इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाए, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए। यानी पहले 8 घंटे पढ़े, फिर बढ़ा के 10 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 12 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 16 घंटे कर दे। अब उसके बाद ये चला जाए अजमेर मोहल्ला, हुजूर मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने टॉप रिजल्ट निकाला, 99% नंबर लाया। अब हुजूर एक दुआ के लिए हाथ उठा दे ताकि कामयाबी कदम चूमे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, कामयाबी आसमान से उतर के कदम चूमे। ये दुनिया के हर फील्ड में ही सिस्टम है। जब खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जब दुकान गए बगैर पैसा मेरे घर में चल के नहीं आता, जब बगैर स्कूल गए डिग्री नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है मगर हम 8 घंटे खेत में पानी पटाते हैं, हम 12 घंटे दुकान में रहते हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है तो दुकान क्यों जाता है, खेती क्यों करता है, फिर ये साफ ग्रेजुएशन तक डिग्री क्यों हासिल करता है, कंपटीशन फेस क्यों करता है, जब रोजी देने वाला अल्लाह है। मगर आप कहते हैं कि नहीं साहब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझको दुकान जाना होगा तब अल्लाह रोजी देगा। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ, तो मैं रोजी के लिए जो रोजी सबको मिलनी ही मिलनी है उसके लिए खेत में, खलियान में, दुकान में, नौकरी, वतन से बेवतन होके गए हम पंजाब दिल्ली में, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी अरब गए, दुनिया के सिक्के के लिए दुकान जाना है रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाना है रोजी